understood the cell cycle from the previous session very clearly, and we'll quickly revise the interface that we had studied yesterday. See, interface जो आधे घंटे में सिखाया था 40 मिनट्स में, उसको 2 मिनट में कैसे रिवाइज करना है? हिंदी में रिवाइज करो, अपनी लैंग्वेज में, इन योर ओन लैंग्वेज, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. फर्स्ट G1 फेज. G1 मतलब गैप या ग्रोथ फेज 1. What happens here? Cell growth happens here. Yes, synthesis of RNA takes place here. Synthesis of proteins take place here. And वो बड़ा होता है, the volume grows. The cell has to make a decision whether to enter into a rest phase or enter into division phase. S phase, which is also called as synthesis phase. Here the only thing that takes place is DNA replication and chromosomes का replication. Yes, number of chromosomes remain same. डीएनए 2 में स्प्लिट हो जाता है. G2 फेज, गैप 2 फेज और ग्रोथ 2 फेज. दिस इज जस्ट अ फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. यस, what happens here? Synthesis of proteins and RNA is going on, the volume increases, the size increases and basic growth takes place. Fine. चलो, तो अब इसके आगे बढ़ेंगे. The second phase or second part of the cycle is called as meiotic phase. M-I-O-T-I-C, meiotic phase, or it is the proper process called as mitosis, which is again divided into 2 parts. Yes, the first part is karyokinosis, K-A-R-Y-O, yes, K-I-N-E-S-I-S, karyokinosis, and the second part of it is cytokinasis. Cytokinesis, karyokinesis. Yes, these are the 2 phases, 2 parts rather. Karyokinesis is further divided into 4 subparts. One is a prophase, another is a metaphase, anaphase and telophase. So we'll be studying each of these today. Fine. What is karyokinosis? Karyokinosis is the actual division of nucleus or division of the cell. Cell division process is divided into 2 parts, karyokinosis, cytokinosis. So let's study one by one. Okay, what is karyokinosis? See, let me exactly show you what happens first and then we'll come here. Okay guys, this is the end of interphase. Interphase यहाँ पे खत्म हुआ. उसके बाद में सी यहाँ पे बहुत सारा गिचड़ मिचड़ हो रखा है. Yes or no? Lot of threads and everything has been accumulated at the center. Look at this thread. बहुत सारा replicated thread है. Yes. So chromosome का replication हो चुका है. Now I want you to observe these things. Thing number 1. Observe the centrioles. क्या होता है centriole का? I'll explain it as well. The centriole gets divided into 2 pieces. इसका भी replication होता है. एक centriole है, yes, centrosome basically. ये जो centrosome है, this centrosome gets divided into 2 centrosomes. Centrosome का replication हो जाएगा. एक centrosome इधर जाएगा और दूसरा centrosome इधर जाता है. One centrosome goes here and the other centrosome goes here. Yes. उसके साथ साथ the centrosome gives out certain threads, certain fibers. Likewise, we'll discuss everything. इनको क्या बोलते हैं क्या? Correct? So that will happen with the centrosome. The nuclear membrane. ये जो nuclear membrane है, this is the nucleus. Yes, and this is the nuclear membrane. This part. This part will disappear at the end of the first phase, that is prophase. The first phase is called as prophase. Pro means previous. The phase previous to division, मतलब beginning वाला phase. Pro मतलब starting, previous phase. Yes? उसमें क्या होगा? ये nuclear membrane disappear हो जाएगा completely. Yes? So first thing will happen with the centrosome. The second change will happen with the nuclear membrane. The third change will happen with the nucleolus.
न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस विल ऑल्सो डिसअपियर एंड chromatin uncondensed DNA. Yes, something will happen with the chromatin and DNA as well, or chromosomes. Chromosomes के साथ भी कुछ तो होगा. और 4 changes you have to observe: 1, 2, 3, and the change that happens with the chromosome. Fine. So let's see how the first phase, that is prophase, works. Look what's happening. सेंट्रोसोम साइड में जा रहे हैं, यस, बीच में क्रोमोसोम्स गेट डिवाइडेड एंड दैट्स द एंड ऑफ प्रोफेज. देखो प्रोफेज के एंड में क्या क्या हो चुका है यहां पे. सी, 2 सेंट्रियोल्स, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया. यस, इसमें से देखो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे हैं, पहले नहीं थे. इसमें से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल रहे. सेकेंड, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, गायब हो गया. यस और नो. यहां न्यूक्लियोलस था, गायब हो गया. एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स. अभी क्रोमोसोम्स थे सिर्फ, अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके हैं. मतलब ऐसे क्रोमोसोम बन गए जिसके बीच में एक सेंट्रोमियर है. यस, duplication of chromosomes हो गया. So you have a pair of chromosomes now. Pair मतलब basically duplication हो गया है उसका, with a centromere at the center. Correct? That is, these are the 4 things or 4 changes that happen in a prophase. That is the first phase of mitosis. Once again, just have a look at what's happening. 4 changes नोटिस, और इसको अपने दिमाग में मूवी की तरह फिट कर दो पूरा कंप्लीटली. सो फिट दिस इन योर माइंड, आईज, दिलो दिमाग में बैठा लो उसको, क्या हो रहा है. यस, सो दिस इज एंड ऑफ फेज 1, वेयर once again what have happened, these changes have happened. Change number 1, okay, this is prophase. Pro मतलब previous. Yes, previous to cell division जो होता है वो getting ready phase. Centrosome shifting to the opposite poles, right? ये centrosome opposite poles पे shift हुआ, और उसके साथ साथ assembly of mitotic spindles. These are spindle threads. SPINDLE THREADS. इसमें से कुछ स्पिंडल टाइप्स थ्रेड्स बाहर निकलते हैं ऐसे. See, these red colored threads appear out of it. Yes, this is the first change that is happening with the centrosome. Change number 2, chromosomes with 2 sister chromatids are formed and they are connected with the centromere. ये centromere होता है ना. ये ऐसे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं यहाँ पे. सी, पहले एक ही था ऐसा, यस, सिंगल. फिर उसके बाद वहां से सिस्टर क्रोमैटिड्स बन के बाहर आते हैं. 3, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स एंड डिसअपियर्स. ये देखो, लुक एट दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पहले पूरा रहेगा, अभी ब्रेक हो गया पार्ट्स में. सी, इट फर्स्ट ब्रेक्स, रप्चर्स, and then finally at the end of this phase it disappears as well. And change number 4, the nucleolus disappear completely. ये देखो, ये यहाँ पे nucleolus था. Nucleus के अंदर there is something called as nucleolus. I hope you are aware of it, right? वो गायब हो जाता है. So these are the 4 things that happens in the prophase, right? ये 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. इसको मूवी की तरह अपने दिमाग में बैठा लो. गाइस, जस्ट क्लोज योर आईज. एवरीबडी, आई वांट एवरीबडी टू क्लोज योर आईज. प्लीज डू इट अलोंग विथ मी, है ना. क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन वंस कंप्लीटली जो हुआ. सेंट्रोसोम्स मूविंग टुवर्ड्स द 2 कॉर्नर्स एंड स्पिंडल थ्रेड्स कमिंग आउट ऑफ इट. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू रप्चर एंड डिसअपियर स्लोली. 2 sister chromatids are formed out of each chromosome.
and the nucleolus starts disappearing completely. ऐसा पूरा पिक्चर चलना चाहिए दिमाग में, and that is your first phase, right? The second phase of mitosis or second stage is called as anaphase. ANA, ana. आना नहीं है, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। अच्छा, ये सॉन्ग था एक पुराना। आना नहीं है, वो एना है। एना मीन्स ऑपोजिट। एना का मतलब होता है ऑपोजिट। देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है? See, these are the two changes that will happen. First, contraction of the spindle fibers pulls sister chromatids apart. बेचारी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है वो सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाती है। देखो यहाँ पे। अच्छा, वैसे सेकेंड फेज इज अ मेटाफेज। सॉरी सेकेंड मेटा होना चाहिए, हमने तो मेटा डिस्कस ही नहीं किया। मेरा डायग्राम्स ऊपर नीचे हो गया गलती से, कोई बात नहीं, हम लोग मेटा पहले डिस्कस करेंगे फिर आना पे जाएंगे। सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज। यस, मेटा मतलब, मेटा मीन्स मिडिल, कल बताया था मिडिल। देखो सीधा सीधा क्या हो गया यहाँ पे, लुक एट दीज, द क्रोमोसोम्स, यस, ऑल अलाइन इन द मिडिल along the equator of the cell। ये जो सेल है न्यूक्लियस, उसके इक्वेटर के अलोंग, सेल के न्यू इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ द सेल। इक्वेटर ऑफ द सेल के अलोंग सारे क्रोमोसोम्स खुद को अलाइन कर लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग्स व्हाट हैपेंस, और इसीलिए नाम है मिडिल, मेटाफेज। ईच क्रोमेटिड फेसेस ऑपोजिट पोल्स, ऐसे ऐसे, करेक्ट, एंड दिस इज द सेंट्रोमियर। ये ऐसे फेस करते हैं एक दूसरे, दे फेस द ऑपोजिट पोल्स लाइक दिस। द क्रोमोसोम्स आर प्लेस्ड लाइक दिस। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, ऐसे प्लेस्ड है सारे क्रोमोसोम्स इन दिस फैशन। यस, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ये स्पिंडल फाइबर्स निकले थे पहले, यस, उनका बर्थ हुआ था। नाउ दिस स्पिंडल फाइबर्स get attached to the centromere like this, यहाँ से, है ना। I'll change the color, रेड के ऊपर रेड नहीं दिखेगा, ये यहाँ से ऐसे, I am drawing with a black color। The spindle fibers get attached to the centromere of the chromosome and pull it apart। Yes, attach हो जाते हैं और they contract और pull it apart। Centromeres of centrosomes line up in the middle forming equatorial plane। Fine। Each chromatid faces the opposite poles, ऐसे arrange हो जाता है वो। Yes, chromosomes। The spindle fibers get attached to the chromosome centromere and the chromosomes arrange themselves in the equatorial plane along the equator। Let's picturize this in our minds। So this was the end of prophase। मेटाफेज को चालू करते हैं यहां से, देखो क्या क्या हो रहा है। See the spindle fibers growing, the sister chromatids all aligning themselves in the equatorial plane। Yes, and that is the end of metaphase। बस इतना ही हुआ है ना, बस इतना ही हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। लुक हियर, they are all facing the opposite poles, ठीक है। So ये आ गया यहाँ पे, all the spindle fibers, chromosomes line up in the middle of the spindle, ठीक है। two opposite ends of the cell, एक इधर के एंड पे एक इधर के एंड पे, and that is just happening in the metaphase। metaphase बहुत छोटा सा होता है, कुछ भी नहीं, all the chromosomes align at the center, yes, and the spindle fibers get connected to the centromere of the chromosomes। clear है? From here itself, let's move on to the next phase, which is called as anaphase। ANA, ana means opposite। Yes, ana means opposite। Now what happens in this phase, just have a look। Great। So क्या हुआ यहाँ पे, in this phase
basically condensed chromosome with one chromatid. Now see, these spindle fibers contract. ठीक है, यहां लिखा नहीं है, हम पॉइंट्स लिखेंगे. ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये साइड में, ये सेंट्रोसोम जो है अपने अपने फाइबर्स को अपने पास खींच लेता है. यस, द सेंट्रोमियर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक, सी दिस वाज द फर्स्ट क्रोमोसोम, है ना, इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड वाला एक पार्ट इधर आ जाता है अलोंग विद द सेंट्रोमियर और अलोंग विद द सेंट्रोमियर. तो दो सेंट्रोमियर बन जाते हैं, एक सेंट्रोमियर इधर आ जाता है, एक सेंट्रोमियर इधर आ जाता है. यस, एंड ऑपोजिट एंड्स पे जाते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज एनाफेज. दे गो टू द ऑपोजिट एंड्स, करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई द नेम एनाफेज. So these are the things happening. First is contraction of the spindle fibers pulls the sister chromatids apart. Sister chromatids को pull कर लेते हैं. Second, the centromeres also divide, one for each sister chromatid. जुड़वा बहनें थी, yes, कुंभ के मेले में खो गए दोनों. ठीक है ना, एक बहन बेचारी इधर आ गई सेंट्रोमियर के साथ, दूसरी बहन इधर आ गई सेंट्रोमियर के साथ, एंड दे मूव ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, हेंस द नेम एनाफेज. दैट्स इट, बट इतना ही हो रहा है वहां पर. ठीक है ना, द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट. द सेंट्रोमियर आल्सो गेट्स डिवाइडेड अलोंग विद द सिस्टर क्रोमैटिड्स. क्लियर है? एंड द लास्ट फेज is the telophase. टीलो मतलब एंड, टीलो, TELO, है ना, कल भी हमने देखा था इसके बारे में. टीलोफेज, टीलो is nothing but the last phase. What happens in the last phase? See, two daughter nuclei are formed, one at each pole. First, देखो यार, यहाँ पे इस साइड में क्रोमोसोम्स आ चुके हैं. यस, सेंट्रोसोम आ गया, क्रोमोसोम आ गया, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन जाता है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस बन जाता है, काइंड ऑफ, है ना. क्योंकि न्यूक्लियस बनाने के लिए क्या चाहिए? डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. देखो, दो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस में सेम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आ गई ना अभी. ये सिस्टर और ये सिस्टर, जुड़वा भाई है, एकदम डिट्टो सेम. यस, देयर कैन बी माइनर चेंजेस दो, वेरी माइनर, बट ऑलमोस्ट सेम है. करेक्ट है ना. 99.999999% इंफॉर्मेशन इसमें और इसमें सेम है. करेक्ट. तो अब दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए. टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एट वन एट ईच पोल, एक लेफ्ट पोल एक राइट पोल पे. सेकेंड, टू द सेंट्रोसोम ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड, है ना. एक साइड में ये सेंट्रोसोम आ गया, दूसरे साइड में ये सेंट्रोसोम आ गया. अब ये नेक्स्ट साइकिल में वापस इसका रोल आएगा, पिक्चर, है ना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर. अभी इसके बाहर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो गया, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी बनना चालू हो गया. एंड द सिस्टर क्रोमैटिड्स अनकॉइल एंड बिकम थ्रेड लाइक क्रोमैटिन अगेन. यस, अब ये अनकॉइल हो गया और क्रोमैटिन वापस फॉर्म हो गया वहां पर. एंड दैट इज द लास्ट स्टेज, दैट इज टीलोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. देखो टीलोफेज में क्या हो रहा है. यस, टू न्यूक्लियस आर फॉर्म, न्यूक्लियोलस आ गया वहां पर, एंड अगेन द क्रोमोसोम्स गेट स्प्लिट इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज द chromatin thread again. Yes, and yes, ये भी लिखना पड़ेगा that there is a cleavage furrow that gets formed between the two nucleus. ये जो दो न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं इनके बीच में there is a cleavage furrow that gets formed, है ना. मतलब एक ऐसा डिवीजन हो जाता है. The exact structure that you are seeing here, fine. ये यहाँ से ऐसा हार्ट शेप, नीचे से भी हार्ट शेप उल्टा. करेक्ट. सो क्लीवेज फरो इट इज कॉल्ड एज गेट्स फॉर्म बिटवीन द टू न्यूक्लियस,
एंड दैट्स द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एंड इसके बाद एक छोटा सा फेज होता है साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस इज वेरी सिंपल, द साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स। ये देखो, जो साइटोप्लाज्म था वो भी स्प्लिट हो गया दोनों का। गेटिंग इट? साइटोप्लाज्म, इसको भी साइटोप्लाज्म चाहिए होगा और इस न्यूक्लियस को भी चाहिए होगा। सो साइटोप्लाज्म स्प्लिट होता है एंड टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, and that is the second stage, that is cytokinesis. Fine? So पूरा प्रोसेस, एक बार मूवी देखते हैं पूरे प्रोसेस की, है ना, and then we will fit that in our minds. Let's begin with the prophase. सेंट्रोसोम्स आ गए इधर, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए, न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। मेटाफेज में ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज एट द सेंटर एंड क्रोमेटिन थ्रेड्स, स्पिंडल थ्रेड्स फॉर्म होते हैं। यस, द स्पिंडल्स थ्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट। द सेंट्रोमियर आल्सो गेट सेपरेटेड। लास्ट फेज में टू न्यू न्यूक्लियस आर फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है वापस, सेंट्रोसोम भी अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस भी फॉर्म होता है एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स में द क्रोमोसोम्स गेट डिवाइडेड। एंड द लास्ट फेज, द साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स एंड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। फाइन? I want all of you guys to pause the session right now and imagine the entire process in your minds. हर एक चीज को इमेजिन करो कि किस तरह से हो रहा है मूवी की तरह, और याद रहने में ट्रस्ट मी कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक पॉइंट याद रहेगा। प्लीज डू इट राइट अवे। सो एग्जाम में ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एट ईच पोल, सेंट्रोसोम इज आल्सो डिवाइडेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स अनकॉइल एंड बिकम लाइक क्रोमैटिन। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लीवेज फरो अपीयर्स, क्लीवेज फरो यहाँ पे बनता है। दैट इज द स्टेज और दैट दिस इज द प्लेस ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन। द क्लीवेज फरो इज द प्लेस जहां से साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। एंड द लास्ट स्टेज, दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट डिविजन ऑफ cytoplasm. Finally, two identical daughter cells are formed. Formation of cell plate. Cell plate ये यहाँ से, this is called as cell plate by aggregation of vesicles. Fine. यहाँ से kind of a vesicle form होगा, plate, and the cytoplasm gets divided and two new nuclei are formed. And now this again begins with an interphase. इसका भी अब इंटरफेस चालू होगा और इसका भी अब इंटरफेस चालू होगा। बेबी न्यूक्लियाई है ये, छोटा है ना। अब इसका ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ये वो साइज में ग्रोथ, डिसीजन, डिवाइड होना है नहीं होना है, पूरा प्रोसेस चालू बकवास। ठीक है, वही काम है उसका। अरे उसका काम ही वो है, उसको स्कूल नहीं जाना, उसको पढ़ाई नहीं करना, कितना खुश है ना, वेरी लकी। यस, कोई टेंशन नहीं, स्कूल नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो दिस इज द एंटायर सेल साइकिल। तो पूरा इंटरफेस से लेकर के माइटोसिस के एंड तक सेल साइकिल कैसे वर्क करता है। लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग, यस, with the entire view in front of you. I won't say anything, just have a look at a few things. ये फेज है हमारा गैप 1। यस, गैप 1 में सेल के साथ देखो क्या क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के साथ देखो और डीएनए के साथ देखो। दिस इज आवर सेकेंड फेज, रेप्लिकेशन। सो व्हेन द सेल एंटर्स रेप्लिकेशन क्या क्या होता है। गैप 2, दिस इज माइटोसिस फेज, कि माइटोसिस में क्या हो रहा है एंटायरली, साइटोकाइनेसिस, एंड देन अगेन गैप 1 चालू हो जाता है सबके लिए। यस, टाइम गैप्स देखो तो जरा किसको कितना टाइम लगता है। सी, ग्रोथ फेज बहुत बड़ा है, 8 घंटे 9 घंटे का है ऑलमोस्ट। एस फेज इज ऑलमोस्ट 6 आवर्स, है ना। गैप फेज 2 आवर्स। यार माइटोसिस देखो कितना सा है,
2 घंटे के अंदर सेल डिवीजन होता है, हाँ कि नहीं? सी यार, इट इज लाइक आवर लाइफ साइकिल ओनली. अ बेबी इज बॉर्न, यस, बेबी को ग्रो करने के लिए 21 ईयर्स लग जाता है ना? ग्रो मतलब टू बी रेडी, फिट, हेल्दी फॉर रिप्रोडक्शन, 21 ईयर्स. और रिप्रोडक्शन को कितना लगता है? 9 मंथ्स, हाँ कि नहीं? फॉर अ गर्ल इट कैन बी 18 ईयर्स, ऐसा बोलते हैं, राइट? So 18 years for girl, 21 years for boy. So that is the growth phase, maturity phase. Yes, लेकिन reproduction process अगर दोनों का चालू हो जाए, so it takes only 9 months, 10 months, 12 months ज़्यादा से ज़्यादा. Yes or no? Because planning takes time. ठीक है? So 9 to 10 months is the only process. तो actual cell division या reproduction process बहुत छोटा है. 2 hours of this and 2 hours of cytoplasm splitting. Yes, and almost in 21 hours entire intraphase plus interphase plus mitosis complete हो जाता है. Fine. So entire view in front of you, just have a look at it. The mitosis begins here. And a new cell is formed and gap one stage again begins, right? This is the entire process of cell division of a somatic cell, that is a body cell, है ना? बॉडी सेल का सेल डिवीजन इस तरह से होता है. So these 4 stages together, you guys can pause the session right now और पीछे का जो सिमुलेशन था, एनिमेशन था, वो वापस देख के अपने पूरा दिमाग में फिट कर लो उसको रिवाइंड करके. Fine. So these 4 steps where all these changes keeps on happening are part of karyokinesis. Yes. First is prophase, previous. Yes, getting ready. Second is metaphase. Meta means center में align करते हैं वो लोग. Third is anaphase. Anaphase में sister chromatids go to the opposite parts. And last is telophase. That is the last part. Clear है? Now, this process happens in both plants as well as animals. Yes? Animal cells में भी ऐसे ही division होता है and plant mitosis भी ऐसे ही होता है. Yes? Apart from a few changes. ठीक है? First, centrosome में there is something called as aster is seen. What is aster? See, stars होते हैं ना, stars में पीछे एक tail होता है. If you have seen movies में या photos में देखा रहेगा. Yes, जब star travel करता है तो it leaves a tail behind it. या ये जैसे जेट होता है ना, जेट बहुत फास्ट चला जाता है तो उसके पीछे एक टेल रह जाती है उसकी. दैट टेल और रेडिएशन ऑफ रेज इज कॉल्ड एज एस्टर, है ना? तो फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस इज लाइक रेडिएशन. ये सेंट्रोसोम है, यहाँ पे देखो कैसा रेडिएशन हो रहा है, लाइट रेज आर कमिंग आउट ऑफ इट. दैट इज कॉल्ड एज एस्टर. सो इसमें एस्टर्स आर फॉर्म. Whereas in case of plants, these asters are not seen. In case of plants, जो centrosomes है, उसमें asters are not seen. और not seen मतलब बनते ही नहीं है तो दिखेंगे नहीं. Yes or no? Second point. This occurs in almost all tissues of growth and replacement. देखो growth, replacement, yes, रिपेयर, ये 3 चीजों में ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर के सारे सेल्स एनिमल्स के ये प्रोसेस करते हैं. दैट इज माइटोसिस. मतलब माइटोसिस अकर्स और हैपन्स इन ऑल द ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर सेल्स. वेयर एज ये जो प्लांट्स है, इन प्लांट्स दिस प्रोसेस ऑफ माइटोसिस स्पेशली टेक्स प्लेस एट द growing tips
of roots and stem. Yes, in short, meristematic tissue. मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ना, आई होप यू नो व्हाट दिस इज, ये नहीं सिखा रहा हूं। मेरिस्टेम होता है, यस, जो ग्रोथ टिश्यू है सिर्फ वहां पर माइटोसिस टेक्स प्लेस मेनली, है ना। इट हैपेंस एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, है ना। ग्रोइंग मतलब ग्रोथ कैन बी लेंथ वाइज ऑल्सो एंड थिकनेस ऑल्सो, यस। प्लांट को मोटा, जहां से प्लांट मोटा होगा वहां पे ये प्रोसेस होता है माइटोसिस का, सेल डिवीजन, और जहां से प्लांट लंबा होगा वहां से भी ये प्रोसेस होता है ऑफ सेल डिवीजन, है ना। इसमें साइटोकाइनेसिस, KINESIS, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग a cleavage furrow. This is called as furrowing of cytoplasm. Yes, this is called as furrowing of cytoplasm. So cytoplasm का furrowing होता है यहाँ पे, जिसके बाद the cell actually gets divided. Yes, और यहाँ पर cell plate का formation होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, हमने देखा ना सेल प्लेट क्या होता है एंड क्लीवेज फरो क्या होता है। यस, द प्लेट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे दिस इज द सेल, ऐसा हो गया, यहाँ पे एक प्लेट फॉर्म हो जाता है, सेल प्लेट बोलते हैं इसको, सेल प्लेट। यस, फाइन। दिस सेल प्लेट एक्चुअली फॉर्मेशन ऐसा होता है इसका, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। सेंटर से सेल प्लेट फॉर्म होना चालू होता है, सेंटर से। यस, मतलब ऐसे, सी, यहां से सेल प्लेट का फॉर्मेशन चालू होता है, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड, दैट इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, है ना। सेंटर से प्लेट ऐसे ऐसे बनना चालू होता है ऊपर की तरफ, एक ही सेंटर में सिर्फ सिंगल, यस, और वहां से सेल डिवाइड होता है। वेयर इज यहां पे इट इज क्लीवेज टू द सेंटर, मतलब देखो ये सेल है ऐसे, है ना। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे, है ना। मतलब अंदर की तरफ ऐसे क्लीवेज फॉर्म होते जा रहा है, यस, एंड फाइनली और छोटा हो जाएगा वो ऐसे, है ना, और फिर यहां से ब्रेक होता है, सेपरेट होता है। सो यहाँ पे फरोइंग होता है, क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, वेयर यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होता है। और सेल प्लेट फॉर्म कैसे होता है, ये सेल है सेंटर से, इधर से ऐसे प्लेट फॉर्म होता है, एंड अबाउट दिस प्लेट इट गेट्स डिवाइडेड, फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन प्लेट फॉर्म होगा और वो डिवाइड हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? यस, एंड दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस। फाइन। What is the significance of mitosis? Significance. What is the importance of mitosis? यार ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ग्रोथ। माइटोसिस नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा? रिपेयर, हाँ कि नहीं? माइटोसिस नहीं होगा तो स्किन रिपेयर नहीं होगा, वेयर एंड टेयर रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेसमेंट, हेयर, नेल्स, जो सेल्स रिप्लेस होते हैं वो नहीं होगा, यस और नो। फोर्थ, देखो देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, yeast, they all reproduce asexually, है ना। The reproduction is asexual reproduction, फाइन। तो यार उनका तो रिप्रोडक्शन भी इसी मेथड से होता है, सेल डिवीजन के मेथड से, यस और नो। उनका तो रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन मेथड से ही होता है। हमारे लिए रिप्रोडक्शन के लिए हम मायोसिस अलग से प्रोसेस सीखेंगे, है ना, बट इनके लिए ऐसा नहीं होता, इनके लिए द प्रोसेस इज ऑल्सो सेम। गेटिंग इट? सो organisms like bacteria, yeast or single cellular organisms reproduce by mitosis. So asexual reproduction takes place through mitosis. Fine.
माना कि हम लोगों का रिप्रोडक्शन होता है मायोसिस सेल से, मतलब गैमेट से, बट जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब माइटोसिस हेल्प्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन, ऐसा लिखो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, अब पेरेंट सेल क्या है, ये सेल पेरेंट सेल, और इससे दो सेल बन गए, एक ये, तो इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स। यस, दीज टू आर डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स बनता है, एक पेरेंट से दो डॉटर, है ना। सो इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है which helps to maintain the same number of chromosomes in the parent and daughter cells. Fine, and that is all about mitosis. Getting it? A very very important process. सारी स्टेप्स, सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। यस, विजुअलाइज, क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज। बच्चों हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ो यार, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था हिस्ट्री। हिस्ट्री को जितना विजुअलाइज करोगे, जितना इमेजिन करोगे, अच्छा रहेगा। सी हिस्ट्री इज लाइक बाहुबली मूवी, हाँ कि नहीं? बाहुबली मूवी के कैसे सीन याद रहते हैं सारे, है ना। तो हिस्ट्री में ऐसे वॉर होता है, लड़ाई होती है, यस, कोई वायलेंस होता है, थोड़ा बहुत रायोट्स होते हैं हिस्ट्री में, है ना। तो सारे रायोट्स को, इसको उसको, नंबर्स को सब विजुअलाइज करो। यस, कि इतने लोगों की आर्मी यहाँ से आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटएवर जो भी है ना। तो जितना विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा होगा। सेम अप्लाइज फॉर बायो, ट्राई टू विजुअलाइज एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, ठीक है। और या इट हेल्प्स यू टू मेमोराइज, नथिंग एल्स। मेमोराइज तो करना ही है, बट थोड़ा सा हेल्प होगा मेमोराइज करने में। सो टुडेज टास्क इज रीड द टेक्स्ट बुक कंप्लीटली, थरोली, अच्छे से, पूरा एक एक पॉइंट, ठीक है बच्चों। दीज पॉइंट्स आर फॉर योर हेल्प, यू नो। इसमें मैंने कोई पॉइंट मिस किया होगा तो या ऐड करो, लिख के रखो, खुद के नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाओगे तो 5 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन पॉसिबल है, यू नो। सी, ये इसको बोलते हैं खुद के नोट्स, पॉइंट वाइज, खट 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 खट। टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त इसमें अगर कोई पॉइंट मिसिंग होगा तो ऐड कर देना यहाँ पे, करेक्ट। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एज सच, डायग्राम को विजुअलाइज करने का और ये पॉइंट्स याद करने का, है ना। 5 मिनट में स्टार्टिंग से यहाँ तक एक बार पूरा चैप्टर हो जाने दो। आई विल टेल यू हाउ टू रिवाइज ऑल्सो, ठीक है। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद मायोसिस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, देन विल रिवाइज द एंटायर चैप्टर एंड रैप इट अप। ये चैप्टर जहां खत्म होगा, अगला चैप्टर वहां से शुरू होगा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली सो दैट आगे का चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड इट केयरफुली। प्रिपेयर वेल, पढ़ते रहो, रीड योर टेक्स्ट बुक एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, सी यू।